You are on board. So now I request to Dr. Gupta, please, if all has joined, we can start. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us to witness national webinar on Hackathon, Resources Conservation in Agriculture, hosted by Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, under the auspices of National Agriculture Higher Education Project. I am delighted to note that about 900 participants have registered themselves to attend this webinar, which shows its relevance in present context. On behalf of SKNAU, I receive all of you and convey my greetings. Most respected Professor J.S. Sandhu, Honorable Vice Chancellor, SKNAU Jobner, our esteemed speakers, namely Dr. Ashok Dalwai, CEO of National Rainfed Area Authority, Government of India, Shri Ajay Veer Jakhad, Chairman, Farmers Forum, India, Dr. Saten Yadav, Chairman, Center for Agribusiness and Disaster Management, and also President, Horticulture Produce Management Institute. Dr. R.C. Agarwal, sir, Deputy Director General Education and National Director, NAHEP, ICR, New Delhi. Dr. P.N. Mathur, Consultant, Agro Biodiversity and ex-Regional Representative for Central and South Asia Biodiversity International. Dr. Prabhat Kumar, National Coordinator, Center for Advanced Agriculture Science and Technology, and MNE, NAHEP, ICR. Dr. O.P. Yadav, sir, Director, ICR, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, and respected Padma Shri awardee, Shri Sundaram Verma, a progressive farmer from a village, Dataramgarh district, Sikar, Rajasthan. Distinguished professors, scientists, specialists from different universities and institutions, government officers, agribusiness magnates, research scholars, and young professionals. It's my pride privilege to welcome all of you to this innovative event. Before we get started, I would give a brief about Sri Karan Narendra Agriculture University for our new viewers. Sri Karan Narendra Agriculture University, established in the year 2013 at Jobner, is a developing agriculture university in Rajasthan. The university was established with the primary aim to uplift economically backward classes, particularly of rural areas, to adopt the modern practices in the field of agriculture, animal husbandry, and horticulture. The university caters to the agricultural needs of 8 districts, which is covering 16% area of Rajasthan. The university carries out its activities through a network of 9 constituent colleges, 1 research institute, namely Rajasthan Agriculture Research Institute, popularly acronymed as RARI, 2 agricultural research stations, and 4 agricultural research substations. The university is on the path of arduous journey to achieve its mission and goals. It's in this context the current webinar is scheduled for disseminating the innovative ideas among the all stakeholders. I am sure that SKNAU shall achieve more than its objectives under the guidance and dynamic leadership of Professor J.S. Sandhu, a great visionary. May I request Professor J.S. Sandhu, sir, to give his opening remarks. Professor J.S. Sandhu has been a renowned agricultural scientist and research manager. Dr. Sandhu served the Indian Council of Agricultural Research in New Delhi as a Deputy Director General Crop Science and Assistant Director General Seeds. He also served as Agriculture Commissioner, Government of India, in between these positions.
He also served as Vice Chancellor of NDUAT, Faizabad, Ayodhya, Uttar Pradesh. He has developed 23 varieties of different pulse crops and published 229 research articles in scientific journal of national and international repute. He is fellow of prestigious National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi. Over to Professor Sandhu sir. Good evening, friend. Those are on the board. आज का जो वेबिनार, अगर मैं कहूँ थोड़ा हिंदी में अगर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और लोग भी होंगे, तो उस विषय से बात करते हुए और सर्वप्रथम मैं आज के जो एमिनेंट स्पीकर हैं उनका स्वागत करता हूं। उसमें हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक दलवई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे तब से उनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा। उन्होंने बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया, डबलिंग द फार्मर इनकम, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने मेहनत करके वो डॉक्यूमेंट बनाया। वो आज हमारे साथ है। और अभी जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, क्योंकि वो उसका सीधा जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंस है, तो उनका एज ए स्पीकर उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैं उनका वेलकम करता हूं और उन्होंने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज हमारे साथ हैं। और उसी के साथ में अगर किसान की बात करें तो श्री अजय वीर जाखड़ जी, जिनको मैं बहुत काफ़ी लंबे समय से जानता हूं, और उनकी एक्टिविटीज़ जो किसान से सीधी रिलेटेड है और उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और जो भी प्लानिंग, कई बार जो प्लानिंग लेवल पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अपना बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल जो वो पंजाब फार्मर कमीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ डॉक्टर सत्येंद्र जाधव अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, उनके साथ हमारा एमओयू है और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं, पर्टिकुलरली जो मार्केट इंटेलिजेंसी में और किसानों को कैसे इसकी आमदन बढ़ सके और क्या क्या इनोवेशन उस दिशा में हो रहे हैं उसके संबंध में हमारा काफ़ी तकरीबन 2 साल हो गए लगातार किसी न किसी फॉर्म पर मिल रहे हैं। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं एजुकेशन के डॉक्टर RC अग्रवाल साहब, उनका वेलकम, क्योंकि हायर एजुकेशन आज का जो वेबिनार है पर्टिकुलरली जो हैकाथॉन की बात करते हैं कि कहाँ से आइडिया पूल करके हमारे जो स्टूडेंट हैं और उनको जो आइडिया दें ताकि उसको जो फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इनोवेटिव वे में कर सकें। आई थिंक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एजुकेशन में जैसे अब कोरोना का पीरियड था, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, आगे हो सकता है कि वर्चुअल क्लासरूम से, और इसी तरीके से हमें और दिशा में स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप आज हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, आप आए हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर OP यादव जो जोधपुर में कादरी जो ICAR के इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर मे बी लास्ट 10-15 ईयर, तो आई नो द काइंड ऑफ ही इज अ वर्कर, और पर्टिकुलरली इन राजस्थान इन द ड्रायर एरिया व्हाट इज, क्योंकि इनका इंस्टीट्यूट वो जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन में काम करता है, उनका मैं वेलकम करता हूं। इसी के साथ साथ डॉक्टर प्रभात कुमार एक यंग साइंटिस्ट और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हायर एजुकेशन में और फ्लोरिकल्चर में अपना अनुभव रखते हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। और इसी सबसे ऊपर जो है महत्वपूर्ण, आज हमारे बीच में जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री अवार्डी श्री सुंडाराम जी हमारे साथ में है, और उनके गांव में जाके आया, उनकी जो इनोवेटिव सोच है वो भी हमारे साथ में है, और उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस तरह से बाकी हमारे जो साथी हैं विश्वविद्यालय के या बाकी जो
आज के वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमारे इमिनेंट स्पीकर जो भी आइडिया देंगे उस पर तो हम काम करेंगे। इसके अलावा बाकी जो स्पीकर हैं, अगर बाद में भी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपना सुझाव या इनोवेशन से संबंधित कुछ आइडिया दे सकते हैं तो उनका भी वेलकम है। तो आज का टॉपिक जो है द रिसोर्स कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, that includes natural as well as other sources. So how the agriculture can be facilitated और what are the जो इनोवेशन हुए हैं उसमें हम और इनोवेशन क्या करके उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमें पता है कि वाटर, लैंड और बायोडाइवर्सिटी ये नेचुरल रिसोर्स है, जो इस पर बहुत काम हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं और आगे उसमें करने की जरूरत है। और इसी प्रकार सोलर एनर्जी, जिसको हम एक रिसोर्स नहीं मानते थे, पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है एग्रीकल्चर में बन के आया है, जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। तो उस दिशा में हम क्या सोचते हैं, कुछ और आइडिया उसमें आगे आ सकते हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करें कि इस बार बड़ी अच्छी बात है, अभी डीएसआर से पंजाब में अपना धान का सोइंग हुआ है। क्या उसके बाद जो रिसोर्स कंजर्वेशन क्रॉप रेजिड्यू है हैप्पी सीडर से कर रहे हैं। हैप्पी सीडर के लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और उसके लिए क्या कोई छोटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जहाँ कुछ उस बेसिस पर सोच सकते हैं, जैसे फार्मर की कोई समस्या उस तरह से हल हो सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैकेनाइजेशन से संबंधित हो सकती हैं। स्मॉल से स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इक्विपमेंट जो किसान के लिए सोच सकें, क्योंकि आजकल आपका व्हाट्सएप पर और बहुत सारे इस तरह के आपको दिखाए जाते हैं इनोवेटिव, तो कुछ उस दिशा में सोचने के लिए तो जरूर मजबूर हो रहा है। और बाकी जो है आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अभी बहुत हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो उसमें क्या संभावना है, उसमें क्या इनोवेशन की हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी की, हमारे रिसोर्स की बचत हो सकती है, क्या हो सकता है, वो सब चीजें हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण विषय है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। वो उसमें बहुत बड़ा हमारे पास स्कोप है, इंक्लूडिंग रिमोट सेंसिंग है, या कोई और नई जो सेंसर टेक्नोलॉजी है, या कुछ और ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम, जो स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सब विषय को हम कवर करते हुए तो कैसे जो है किसान की कुछ समस्या का हम हल ढूंढ के इनोवेटिव तरीके, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसी चीजों के बारे में हम कुछ चर्चा करके और कलेक्टिवली हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे के उसका सोल्यूशन ढूंढ सके। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो बाकी मैं ज्यादा ना करते हुए, जो लेटेस्ट दो एक समस्या चल रही है इंडिया में, एक तो जो टिड्डी दल है वो पर्टिकुलरली राजस्थान को परेशान किया हुआ है, और दूसरा जो फॉल आर्मी वॉर्म एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो ये तो लिस्ट उनके लिए तो अलग हो सकता है, रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, पर लेकिन क्या इनोवेटिव कोई तरीका हो सकता है कि उनकी दिशा में भी हम कुछ काम कर सकें। और आज की जो हैकाथॉन है उसमें हम कुछ आइडिया और कुछ ऐसी चीज आपके थ्रू से मिले ताकि उसके आगे हम काम कर सकें। और पुणे में सभी लोगों का स्वागत करता हूं और होपफुली आशा करता हूं कि आज का जो वेबिनार है उससे हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइन ऑफ एक्शन ड्रा कर पाएंगे और आपके आइडियाज को आगे कैसे ले जा सकेंगे और किसान का जीवन को थोड़ा सरल करने में हम कुछ उस दिशा में मदद कर सकें। तो मैं पुनः आप सभी का वेलकम करते हुए अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि वे हमें अपने इमिनेंट स्पीकर से सुनना है। तो डॉक्टर गुप्ता जी, यू कैन टेक फॉरवर्ड टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।